good morning. Here I am Sandeep Bharati going to teach you second part of second chapter of history class 10th, the nationalist movement in Indo-China. The next subtopic, why the French thought colonies necessary. Colonies were considered essential to supply natural resources and other essential goods. Like other Western nations, France also thought it was the mission of the advanced European countries to bring the benefit of civilization to the backward people. Okay, so colonies. So colonies were made only to make the essential goods, supply of essential goods as well as natural resources and other goods. मतलब जो वेस्टर्न नेशन जो थी, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न नेशन जो थी, फ्रेंच ये मानते थे कि अगर हमने इस नेशन को एडवांस करना है एंड वी आल्सो कंपेयर इट विद द यूरोपियन कंट्रीज, देन we would also civilize the nation and improve the living status of the people there who are actually backward. Okay, then so the French began by building canals and draining lands in Mekong delta to increase cultivation. तो फ्रेंच ने क्या किया, they started building canals only for the purpose of their irrigation means watering to the crops. Okay, irrigation क्या होता है, watering to the crops in Mekong deltas. Okay, then vast system of irrigation work, canal and earthwork built mainly with the forced labor increased rice production and allow the export of rice to the international market. मतलब बहुत सारा एरिया जो है वो इरिगेशन में, मतलब उसको इरिगेशन के लिए सिंचाई की वहाँ पे, ठीक है, और जो भी काम था वो वहाँ की जो फोर्स लेबर होती थी उसको यूज़ करते थे वो, ठीक है, ओनली to increase the production of rice so that they could easily export it to the international market. Then the area under rice cultivation went up from 2,74,000 hectare means a unit of measurement of land, new word for you, in 1873 to 1.1 million hectare in 19th century and 2.2 million hectare in 1930. So when they started improving the land which was brought into the cultivation, okay, then it would also increase the production of the rice, okay, in different years. Clear? Then Vietnam exported 2/3 of its rice production and by 1931 had become the third largest exporter of rice in the world. तो इससे क्या हुआ, वियतनाम ने जो है इसका 2/3 जो प्रोडक्शन था राइस का, उसको क्या किया, उसने एक्सपोर्ट किया टू द अदर नेशंस सो दैट दे कुड अर्न प्रॉफिट, ओके, बाय द 1931 and become the third largest exporter at that time of rice in the world. Then this was followed by the infrastructure project to help increase goods for trade, move military garrison and control the entire regions. मतलब ये सब कुछ पॉसिबल तभी हुआ जब तभी हो सकता था अगर वहाँ पे अच्छे रोड्स होंगे, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, ट्रेड के लिए मिलिट्री के जो गैरिसन होते हैं, ठीक है, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क दैट वुड लिंक द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड चाइना वॉज बिगिन. मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ किसका, एक रेलवे नेटवर्क का फ्रॉम इंडो चाइना, ठीक है, उसने लिंक किया नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट, जो वियतनाम का जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट जो था उसको लिंक किया, और जो कि चाइना में पहले से शुरू हो चुका था. दिस फाइनली लिंक विद द यूनान इन चाइना वॉज कम्प्लीटेड बाय 1910. तो ये जो काम हुआ था ये यूनान में, चाइना में कब शुरू हुआ था, सॉरी 1910 में, ठीक है. द सेकेंड लाइन वॉज आल्सो बिल्ट इन लिंकिंग वियतनाम टू सियाम, जिसको कि हम पहले
थाईलैंड बोलते थे एज, ठीक है, बाय कंबोडियन कैपिटल ऑफ फेनोम पेन। तो ये सेकंड जो लाइन, सेकंड जो मतलब दूसरा जो काम शुरू हुआ इसका लिंकिंग का वियतनाम को, वो सियाम से लेके कंबोडिया की कैपिटल जो है फोनाम तक, ठीक है। देन बाय द 1920 टू एंश्योर हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर द बिजनेसेस, फ्रेंच बिजनेस इंटरेस्ट्स वर प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट इन वियतनाम टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर। मतलब 1920 में क्या हुआ, फ्रेंच ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको प्रेशराइज किया, ठीक है, कि वियतनाम में जो है वहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब एक अच्छे रोड्स होने चाहिए, अच्छा बिल्डिंग्स होने चाहिए, तभी जाके वो ट्रेड डेवलप हो सकता है। शुड कॉलोनीज भी डेवलप, क्या कॉलोनी जो है वो डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। देन तो इसमें क्या था, एवरीवन एग्रीड दैट कॉलोनीज हैड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। सभी जानते थे कि जो अगर कॉलोनी होंगी, ठीक है, हर कोई इस बात से सहमत था कि अगर कॉलोनीज होंगी तो क्या होगा, जो मदरलैंड जो है उसके हित में काम किया जाएगा, मतलब उसके फेवर में काम किया जाएगा। बट द क्वेश्चन वाज हाउ, मतलब उस टाइम में एक प्रश्न था कि ये कैसे होगा, ठीक है। लाइक पॉल बर्नर्ड एक पावरफुल राइटर थे फ्रांस के, ठीक है। देन एंड पॉलिसी मेकर स्ट्रांगली बिलीव दैट इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनी नीडेड टू बी डेवलप, ठीक है। अगर कॉलोनीज डेवलप होंगी तो वहाँ की इकोनॉमी भी क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट सॉरी ही आर्ग्यूड दैट, मतलब उन्होंने रीज़न दिया, आर्ग्यूड का मतलब होता है रीज़न, दैट द पर्पस ऑफ द एक्वायरिंग कॉलोनी वॉज टू मेक प्रॉफिट। मतलब उन्होंने एक रीज़न दिया कि कॉलोनी का मेन पर्पस क्या होता है, एक प्रॉफिट करना, ठीक है। इफ़ द इकोनॉमी वॉज डेवलप एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इम्प्रूव्ड दे वुड बाय मोर गुड्स। तो वो उनका मानना था कि इकोनॉमी जब डेवलप होगी तो हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा एंड दे कुड ईजिली बाय द more goods, okay. The market would consequently expand leading to better profit for the French business। अगर मार्केट एक्सपेंड होगी कॉन्सिक्वेंटली, तो इससे क्या होता चला, मतलब जैसे मार्केट एक्सपेंड होती चलेगी वहाँ पे वियतनाम में, तो वैसे वैसे वहाँ पे उनको फ्रेंच को ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। देन बर्नर्ड सजेस्टेड दैट देयर वर सेवरल बैरियर टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन वियतनाम। बर्नर्ड जो थे एक फेमस राइटर, उनका मानना था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वियतनाम में, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो है वहाँ पे हाई पॉपुलेशन लेवल, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वहाँ पे कम है, एंड एक्सटेंसिव इंडेप्टनेस अमंग द पीजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ के जो जितने भी पीजेंट हैं वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। देन to reduce the rural poverty and increase the agriculture productivity was necessary to carry out the land reforms as the Japanese had done in the 1890। तो उनका मानना था कि अगर ये जो वहाँ पे गरीबी आ रही है, पॉवर्टी आ रही है, तो उसको और उस गरीबी को ख़त्म करने के लिए हम लोग, जैसे कि उनका मानना था कि अगर हम गरीबी को ख़त्म करेंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, और अच्छे लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, भूमि संबंधी सुधार करेंगे जैसे कि जापानीज़ ने किया था 1890 को, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं लोगों के लाइफस्टाइल में, ठीक है। हाउएवर दिस कुड नॉट एंश्योर सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनका मानना ये था कि ये जो है ये सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को अभी भी नहीं मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। एज द एक्सपीरियंस द जापानीज शोड इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड बी एसेंशियल टू क्रिएट मोर जॉब। तो उनका मानना था कि अगर हम लोग पास्ट के एक एक्सपीरियंस लें जापानीज़ से, ठीक है, कि जैसे जापानीज़ के लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया अपनी कंट्री में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिली। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, टू सेट अप मोर इंडस्ट्रीज इन द रीजन, ठीक है। तो ये उनका मानना था। द कॉलोनी इकोनॉमी इन द वियतनाम वॉज हाउएवर प्राइमरली बेस्ड
ऑन द राइस कल्टीवेशन। जो इकोनॉमी जो थी, जो जितना पैसा आता था वियतनाम में, वो सारा का सारा राइस कल्टीवेशन पे ही डिपेंड था और रबर प्रोडक्शन पे, ठीक है, जिसको कि फ्रेंच क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। एंड स्मॉल वियतनामीज एलिट, ठीक है, जो जो वियतनाम के जो बड़े बड़े जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, ठीक है, तो वो उसको कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ वर सेटअप टू सर्विस दिस सेक्टर। मतलब रेल और पोर्ट फैसिलिटी जो थी वहाँ पे सेटअप की गई ताकि वहाँ पे ट्रेड को थोड़ा सा फ्लडिश किया जाए। इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर वर वाइडली यूज्ड इन द रबर प्लांटेशन। मतलब इंडेंचर लेबर क्या होता है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। इंडेंचर लेबर क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ लेबर वाइडली यूज टू इन द प्लांटेशन फॉर द मिड 19th सेंचुरी। मतलब एक ऐसा लेबरर का ग्रुप जो कि किसी प्लांटेशन के लिए, ठीक है, प्लांटेशन क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स सच एज बिवरेज क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी एंड रबर। तो इंडेंचर लेबर जो थे वो मिड सेंचुरी में क्या किया, वहाँ पे रबर प्लांटेशन के लिए उनको फ्रेंच पीपल ने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने क्या किया, उनको काम पे रखा ताकि इसका प्रोडक्शन सॉरी बढ़ाया जाए। द फ्रेंच contrary to the what Bernard would have liked, did little to industrialize the economy. In the rural areas, landlordism spread and the standard of living declined. अब इसमें क्या हुआ, जो सॉरी हाँ, तो जैसे कि ये जो इस क्षेत्र में जो सेवाओं के लिए जो रेल बंदरगाहें जो थी वो स्थापित की गई, जो इंडेंचर लेबर जो थे उनका एक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। और इससे क्या हुआ, मतलब जो रूरल एरियाज़ में जो लैंडलॉर्डिज्म जो था, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक जो ज़मींदारों का एक दबदबा था, ठीक है, उसने क्या किया, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था उसको डिक्लाइन किया, ठीक है। देन एज इट इज़ गिवन इन द पिक्चर, ओके। तो ये जो पिक्चर है आपको, फिगर 5 आपको ये बता रही है, इसमें 19वीं सेंचुरी के एंड में वियतनाम एक फ्रेंच जो वेपन्स का एक क्या वेपन जो व्यापारी थे, जिनका क्या नाम था, यहाँ पे जिन जिन ड्यूपियस, जिन ड्यूपियस एक फ्रेंच, मतलब ये एक ये जो होते हैं वेपन्स के जो बिजनेसमैन थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनके जैसे कई लोग जो थे वो मतलब बिज़नेस से लाभ कमाने की उम्मीद में, प्रॉफिट कमाने की उम्मीद में, मतलब उन्होंने नए नए रीजन्स का पता लगाया, ठीक है। और उन्होंने वह उन लोगों में से भी थे जिन्होंने वियतनाम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, ठीक है, ठीक है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, एक ऐसी लेबर होती है जो कि प्लांटेशन क्रॉप्स को करते थे वो मिड 19 सेंचुरी में, ठीक है। तो इस टर्म्स को आप पढ़ लेना, ठीक है। लेबर वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे एक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम पे वो काम करते थे लैंडलॉर्ड के अंडर, एंड डिड नॉट स्पेसिफाई एनी राइट ऑफ लेबर बट गेव इमेंस पावर टू एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर मतलब मालिक जो होता है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा जॉब की एक पावर देता है, ठीक है। और बट उनको कोई राइट्स नहीं होते कि उसके अगेंस्ट जाएं, ठीक है। एम्प्लॉयर होता है मालिक और एम्प्लॉय होता है उसका वर्कर। तो एम्प्लॉयर कुड ब्रिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट लेबर एंड पनिश्ड एंड जेल देम फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एम्प्लॉयर जो मालिक होता था, इस इंडेंचर लेबर के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, कि जो एम्प्लॉयर जो होते थे वो उनको पनिश भी करते थे अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते, वो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम को पूरा नहीं करते, तो उनको वो क्या करते थे, पनिशमेंट भी देते थे, जेल भी भेजते थे वो उसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक, द डिलेमा ऑफ colonial education. So French colonization was not based only on economic exploitation.
it was also driven by the idea of civilizing mission. Like the British in India, the French claimed that they were bringing modern civilization to the Vietnamese. They took for granted that Europe had developed the most advanced civilization. So it became the duty of the European to introduce these modern ideas to, to the colony, even if this meant destroying local culture, religion, and tradition because these were seen as outdated and prevented modern development. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? द मीनिंग ऑफ दिस, जो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है डलीमा, मतलब एक सॉरी न्यू वर्ड है डलीमा. तो डलीमा क्या होती है, इसका हम लोग सिंपली डिस्कस कर सकते हैं इसको. दुविधा, जैसे कि इट इज़ अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट चॉइसेस हैज़ टू बी मेड बिटवीन मोर यू नो अल्टरनेटिव्स. ओके, स्पेशली वन आर स्पेशली गिवन हेयर. दुविधा मतलब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं लाइफ में, तो हम लोग दुविधा में हो जाते हैं कि क्या करें, ये चीज़ करें कि वो चीज़ करें. तो यहाँ पे क्या था, डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, मतलब एक प्रॉब्लम थी कॉलोनियल एजुकेशन के लिए. तो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन जो थे केवल मतलब आर्थिक शोषण पर ही आधारित नहीं था. मतलब ये एक सभ्य मिशन था, एक एडवांस मिशन था, मिशन के विचारों की तरह था. तो भारत में जो भी फ्रांसीसी ने दावा किया कि वे वियतनाम में आधुनिक सभ्यता ला रहे हैं, बट उन्होंने ये मान लिया था कि यूरोप ने विकास किया है. दैट इज़ ट्रू. सो सबसे पहले डेवलप सिविलाइजेशन के लिए ये सबका एक ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है, बन गया था उस टाइम में कि यूरोप जो है इन विचारों को कॉलोनी में पेश करने के लिए भले ही स्थानीय जो वहाँ के जो कल्चरल मतलब स्थानीय जो संस्कृति थी, धर्म थे, परंपराएं थी पुरानी, ठीक है, उनको नष्ट करना है. क्योंकि इन्हें पुराने रूप में अगर देखा जाए तो आधुनिक विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. ये हमारे इसमें हर्डल्स बन सकते हैं. ठीक है. देन लेटर education was seen as one way to civilize native, but in order to educate them the French had to resolve a dilemma. Again मतलब दुविधा में पड़ गए वो. ठीक है. How far were the Vietnamese to be educated? The French needed an educated local labor force, but they feared that education might create problem. Once educated, the Vietnamese may begin to question colonial domination. Moreover, French civilization citizens living in Vietnam, called colons, began fearing that they might lose their jobs as teacher, shopkeeper, policemen to be educated Vietnamese. So, they opposed policies that would give the Vietnamese full access to French education. तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी एक्सप्लेन. तो शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा जो होती है मतलब एक मूल निवासी, मतलब जो होती है शिक्षा जो है एक सभ्य मूल निवासी, जैसे कि यहाँ पे नेटिव दिया हुआ एक वर्ड, मूल निवासी बनाने की एक तरीके के रूप में इसको देखा जाता है. तो लेकिन अगर देखा जाए तो उन्हें मतलब वियतनामीज़ को शिक्षित करने के लिए फ्रांसीसियों को एक दुविधा का सामना करना पड़ा कि फ्रांसीसी को पढ़े लिखे स्थानीय श्रम मजदूरों की ज़रूरत, मतलब लेबर क्लास की ज़रूरत थी. लेकिन उनको साथ साथ में ये भी डर था, जैसे उनको मतलब उनको एक डर भी था कि शिक्षित लोग जो है हमारे मतलब रास्ते में मुसीबत ना खड़ी कर दें. ठीक है, कि एक बार शिक्षित होने के बाद वो मतलब क्या करेंगे, हमारे से क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है. तो जो वियतनाम में जो रहने वाले जो फ्रेंच सिटीजन्स थे, ठीक है, तो उनको ये भी डर था कि वो अपनी नौकरी ना खो दें. ठीक है, एज अ टीचर, शॉपकीपर.
ठीक है, पुलिसमैन, ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने क्या किया, उसका इन जो पॉलिसीज़ जो थी मतलब ये फ्रेंच की, उनको अपोज किया, ठीक है। और जो वियतनाम मतलब उन्होंने इन इन पॉलिसीज़ को अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये जो नई पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे हित में भी होनी चाहिए, हमारी फेवर में भी होनी चाहिए, ताकि हम लोग मतलब इस फ्रेंच एजुकेशन जो हम हमारे लिए कोई बाधा उत्पन्न ना पड़े करे यहाँ पे, ठीक है। देन टेकिंग मॉडर्न, नेक्स्ट सब टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है, द फ्रेंच वर फेस्ड with yet another problem in the sphere of education. The elite in Vietnam were powerfully influenced by Chinese culture. To consolidate their power, the French had to counter these Chinese influence, so they systematically dismantled the traditional educational system sorry, and established French school for the Vietnamese. What this was not easy. Chinese, the language used by the elites so far had to be replaced. But what was to be take its place was the language to be Vietnamese और French. मतलब बच्चों इसका यहाँ पे ये हुआ कि मतलब आधुनिक बातचीत करना, ठीक है। तो फ्रेंच जो थे ना, फ्रेंच को क्षेत्र में मतलब अपने रास्ते में एक समस्या का सामना करना पड़ा, ठीक है। वो क्या था, जो एलिट्स लोग जो थे, जो सुपीरियर लोग थे, जो लोग थे वहाँ के, ठीक है, जो पावरफुल और कॉन्फिडेंट और सुपीरियर लोग जो थे वियतनाम में, वो क्या करते थे, वो चाइनीज़ कल्चर से प्रभावित थे, क्योंकि चाइनीज़ कल्चर काफ़ी टाइम तक उनको प्रभावित किया था, उनको वो उस मतलब चाइनीज़ कल्चर को फॉलो करते थे वो, ठीक है। बट फ्रेंच लोग अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी लोगों ने कहा कि चीनी कल्चर के प्रभाव को ख़त्म करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, वियतनाम में, और उसका डट के मुकाबला करना चाहिए वियतनामी लोगों को। कि बाद में जो है, बाद में फ्रांसीसियों ने व्यवस्थित रूप में एक मैनेजमेंट के रूप में वहाँ पे एक न्यू एजुकेशनल सिस्टम न्यू एजुकेशनल सिस्टम वहाँ पे एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अगर स्कूल हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा वियतनामीज़ को सिविलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में उनके लिए एक इजी टास्क नहीं था, ठीक है। तो वियतनाम में चीनी भाषा का यूज़ बहुत बढ़ गया था, ठीक है, जिसको रिप्लेस करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क था। तो इसके लिए उन्होंने इसकी जगह क्या था, मतलब इसकी जगह क्या लेना था, क्या जो मतलब क्या भाषा वियतनामी थी या फिर फ्रेंच थी, वो आगे जाके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। Okay students, next paragraph. There were two broad opinions in this question. Some policymaker emphasized the need to use the French language as the medium of instruction. By learning the language, they felt the Vietnamese would be introduced to the culture and civilization of France. This would help create an Asiatic French solidly tied to European France. The educated people in Vietnam would respect French sentiment and ideas, see the superiority of French culture, and work for the French. Others were opposed to French beings the only medium of instruction. They suggested that Vietnamese be taught in lower classes and French in the higher classes. The few who learn French and acquire French culture were to be rewarded with French citizenship. मतलब बच्चों इसका ये हुआ कि अब ये जो क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, अब इस पे भी टू व्यूज थे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था एज इट इज गिवन हियर, अब ये जो क्वेश्चन था इस पे भी दो व्यूज थे,
तो वो दो व्यूज़ ये थे कि कुछ जो पॉलिसी मेकर जो थे उन्होंने फ्रेंच भाषा का यूज़ किया और इसकी नीड्स पर स्ट्रेस दिया, ठीक है। और उन्होंने भाषा सीखकर उन्हें उन्हें लगा कि वियतनाम की जो संस्कृति है, मतलब जो फ्रेंच लोग जो थे ना, उन्होंने भी लैंग्वेज सीखी ना वियतनामी की, तो जब उन्होंने सीखा, उसको चेक किया, अंडरस्टैंड किया, तो उनको जो वहाँ की जो कल्चर था, उसकी सभ्यता जो थी, उससे वो मतलब इंट्रोड्यूस हुए, मतलब वो फेमिलियर हुए, सॉरी, ठीक है। और बाद में उनको ये लगा कि अगर हम इससे इसको ज़्यादा हम लोग बाइंड करते हैं, वियतनाम के कल्चर को ज़्यादा बाइंड करते हैं एशियाटिक्स एशियाटिक कल्चर के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ डेवलप करेंगे वियतनाम में कि वियतनाम के जो लोग हैं वो एजुकेटेड होंगे और हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे वो, और हमारे लिए वो काम करते रहेंगे। तो और अदर जो फ्रांसीसी जो सिटीजन थे वहाँ पे, ठीक है, वो इसका विरोध कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपना सजेशन दिया कि वियतनामीज को लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जबकि जबकि जो फ्रेंच जो लोग हैं वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है उनको, ठीक है। तो जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी और संस्कृति को, वहाँ की कल्चर को ग्रहण किया, मतलब उनको ये भी लगता था कि अगर जो फ्रेंच लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, तो और उसकी जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, फ्रांसीसी जो कॉलोनियल रूल है वहाँ पे, उसके द्वारा उनको क्या होना चाहिए कि सिटीजनशिप का एक अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी एनकरेजमेंट फील कर सकें। देन सॉरी बेटा फॉर दिस डिस्ट्रप्शन। However, the next is, however, only the Vietnamese elite, compromising a small fraction of the peoples, could enroll in the school, and only a few among those admitted ultimately passed the school leaving examination. This was largely because of deliberate policy of failing students, particularly in the year, so that they could not qualify for the better paid jobs. Usually, as many as two-thirds of the students failed. In 1925, in the population of 17 million, there were less than 400 who passed the examination. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हालांकि मतलब जो वियतनामी जो एलिट थे, एलिट क्या होते थे, प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब उन्होंने इसका ये जो बड़े जो पॉपुलेटेड स्कूल थे, मतलब बड़ी आबादी वाले जो स्कूल थे, उनमें वो चाहते थे कि उनका दाखिला हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। और ये भी मतलब उन लोगों में से जो भर्ती हुए, मतलब कुछ लोग जो थे उस एलिट, मतलब वो ग्रुप जो पॉपुलेटेड स्कूल है उसमें से कुछ लोग जो है वो एज ए सोल्जर आर्मी में भर्ती हुए, तो उन्होंने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मतलब एक अनसक्सेसफुल पॉलिसी थी, ठीक है, जिसको कि मतलब विशेष रूप से जो है वो लास्ट ईयर में जो बच्चे पास ना हो सके, और वो चाहते हैं कि मतलब लास्ट ईयर में जो बच्चे पास ना हो सके और वो अच्छी सैलरी वाली जॉब ना ले सके, मतलब इसमें कहने का ये है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बहुत से जो 2/3 जो स्टूडेंट्स थे वियतनाम में वो इससे फेल हुए, ठीक है। तो अगर बात की जाए 1925 की, तो 17 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 400 स्टूडेंट्स ही एग्जामिनेशन को पास कर सके, ठीक है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द फ्रेंच and justify colonial rules. The Vietnamese were represented as primitive and backward, capable of manual labor but not of intellectual reflection. They could work in the field but not rule themselves. They were skilled copyists but not creative. School children were told that only French rule could ensure peace in Vietnam. Since the establishment of French rule, the Vietnamese peasants
no longer lives in constant terror of pirates. Calm is complete and the peasant can work with good heart. तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है फ्रेंच लोगों ने क्या किया, उसको ग्लोरीफाई किया। ग्लोरीफाई का मतलब होता है कि अपने जो वहाँ का जो कल्चर है उसको बुक्स के मीडियम से लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। मतलब अपने वहाँ का जो संस्कृति है उसको मतलब रूबरू करवाया बच्चों, मतलब वहाँ के लोगों के साथ उसको उनको फैमिलियर करवाया। रूबरू का मतलब हुआ फैमिलियर करवाया वहाँ पे, ठीक है। तो वियतनाम एक पिछड़े एरिया के रूप में उसको दिखाते थे, ठीक है। वियतनाम को वो एक पिछड़े हुए एरिया के रूप में लेते थे और वो चाहते थे कि वहाँ पे मैनुअल लेबर जो है वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैनुअल लेबर है वो इंटेलेक्चुअल, मतलब पढ़े लिखे तो हैं, बट कुछ लोग उनमें पढ़े लिखे तो हैं, बट वो वैसे नहीं है जैसे कि हम चाहते हैं, ठीक है। वो वैसे नहीं बन सकते हैं, वो हमारे अंडर काम कर सकते हैं और हमारी बातें मान सकते हैं, बट साथ साथ में वो ये भी मानते थे कि वो क्या है, वो एक कॉपीइस्ट भी है, मतलब हमारी नकल भी करते हैं, मतलब हमारी तरह वो जैसे हमने कपड़े डाले हुए हम जैसे बोलते हैं उसको कॉपी भी करते हैं वो, ठीक है। और वो इतने क्रिएटिव नहीं है जैसे कि हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो स्कूली बच्चों को ये बताया गया कि फ्रेंच रूल जो है वियतनाम में एक पीस और डेवलपमेंट ला सकता है। और फ्रेंच रूल के बाद जो है फ्रेंच रूल जो है वो वियतनामीज को, जो पायरेट्स होते हैं बेटा, पायरेट्स क्या होते हैं, जो वो थेफ्ट होते हैं, मतलब समुद्री डाकू जो होते हैं, तो पायरेट्स जिससे भी फ्रेंच लोग जो है वियतनामीज को बचा रहे हैं। तो ऐसा सुन के क्या हुआ, ऐसा लगा वहाँ के पीजेंट को, ये लगा कि ये जो फ्रेंच लोग हैं ये हमारे फेवर में काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने दिल खोल कर क्या किया, उनके अंडर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उनकी बातों को माना। लुकिंग मॉडर्न, आधुनिक दिखना। द टॉनकिन फ्री स्कूल वॉज स्टार्टेड इन 1971 टू प्रोवाइड द वेस्टर्न स्कूल स्टाइल एजुकेशन। टॉनकिन में फ्री एजुकेशन शुरू की गई, ठीक है, 1907 में, जिसमें कि वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। दिस एजुकेशन इंक्लूडेड क्लासेस इन साइंस एंड हाइजीनिक एंड फ्रेंच। मतलब ये जो शिक्षा थी, ये जो एजुकेशन था, इसमें साइंस और हाइजीनिक वाली चीज़ें जो है ज़्यादा पढ़ाई गई, ठीक है। तो दीज क्लासेस वर हेल्ड इन द इवनिंग, मतलब ये शाम को क्लासेस शुरू होती थी और इसके लिए अलग से पेमेंट देनी पड़ती होती थी, ठीक है। द स्कूल अप्रोच टू व्हाट इट मीन्स टू बी मॉडर्न इज अ एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग प्रेवलेंट एट दैट टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो स्कूल का एक अपना जो दृष्टिकोण था, इसका मतलब ये था कि आधुनिक मॉडर्न एग्जाम्पल के थ्रू, मॉडर्न थॉट्स के थ्रू मतलब लोगों को पढ़ाया जाए वहाँ पे, बट वो इतना इनफ नहीं था, ठीक है। इट वॉज नॉट इनफ दैट मॉडर्न आइडियाज एंड मॉडर्न थॉट्स। द स्कूल एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल सच एज हैविंग अ शॉर्ट हेयर कट। मतलब स्कूल ने एनकरेज किए लोगों को कि आपने वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट करना और अपने हेयर कट जो है ये छोटे छोटे रखने हैं, ठीक है। फॉर द वियतनामीज दिस मेंट अ मेजर ब्रेक विद देयर ओन आइडेंटिटी सिंस दे ट्रेडिशनली केप्ट अ लॉन्ग हेयर। मतलब वियतनामीज की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वहाँ के जो बच्चे होते थे उनके बाल लंबे लंबे होते थे, बड़े समय से लंबे लंबे बाल होते थे, ठीक है। टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टोटल चेंज दैट देयर वॉज इवन अ हेयर कटिंग चैंट। मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे एक बाल काटने वाला एक मंत्र भी था, जिसको कि एक छोटी सी पोइम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कॉम्ब इन द लेफ्ट हैंड, सीजर इन द राइट, स्निप स्निप क्लिप क्लिप, वॉच आउट, बी केयरफुल, ड्रॉप स्टूपिड प्रैक्टिसेस, डंप चाइल्डिश थिंग्स, स्पीक ओपनली एंड फ्रैंकली, स्टडी वेस्टर्न कस्टम। इसका मतलब ये हुआ, बाएं हाथ में कंघी, दाएं हाथ में कैंची, झपकी झपकी, किल्प किल्प, बाहर देखो, सावधान रहना, मूर्ख व्यवहार छोड़ो, बचकानी बातें करना, खुलकर बोले, वेस्टर्न कस्टम का अध्ययन करें, स्टडी करें। तो एक पिक्चर है यहाँ पे जिसमें कि वियतनामी पर्सन है जिसने कि अपने आप को इमिटेट किया हुआ है। तो इमिटेट क्या होता है, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ मैं, इमिटेट होता है नकल करना, ठीक है, नकल करना, ठीक है। इमिटेट किया उसने कि अपनी संस्कृति जो है, इस पर्टिकुलर वर्डिंग को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ
कि इस पर्टिकुलर पिक्चर में ये दिखाया गया कि उसने वियतनामी पर्सन ने क्या किया है, वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट किया है, अपनी संस्कृति को भूल गया, वो अपने कल्चर को भूल गया और वेस्टर्न स्टाइल में उसने क्या किया है, 2 पीस सूट डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और टेनिस खेल रहा है टेनिस कोर्ट में. सो हियर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू स्टॉप वीडियो. ऑलराइट, so hope you understood. So in my channel in the YouTube, okay, Social Science Guruji. So if you have any problem, you can write your views in the comment box, so that I will, so that, sorry, I can give you any suggestion. And along with this explanation video, I also attach exercises. Okay, so you may understand all the exercise question and write down in the fair copy. Thank you very much.